Today topic is magnesium and its metabolic function in plant. Magnesium metabolic function in plant, and it is absorbed by plant in the form of magnesium ion, magnesium divalent ion. And if we see its electronic configuration, it is 2, 8, 2. So in outer shell there are 2 electrons. While in case of calcium, calcium is also absorbed in divalent form. It is 2, 8, 8 and 2. So valence electrons are same, 2 and 2. That's why these are divalent cation. Both lose these 2 electrons. But the reactivity of calcium is more than magnesium, because in this case electron is far away from nucleus as compared to magnesium. So calcium lose its electron earlier or easily compared to magnesium. That's why reactivity of calcium is more than magnesium. This is probably the reason most of the compound in plants are made by calcium, not by magnesium. Okay, so this may be the probable reason for making or being more number of compounds with calcium, not by magnesium, while both are divalent cation. Okay, then this magnesium ion faced severe competition with other cations like ammonium, potassium, calcium, manganese, hydrogen, etc. So these cations are present in soil solution, and the plant root are in this soil solution. Magnesium is also present, but these cations have severe competition with magnesium. So if there is abundance of these cations, then magnesium absorption become poor, or we can say the excess of these cations induce deficiency of magnesium, particularly in acid soil. In acid soil there is dominance of hydrogen ion in acid soils. So these hydrogen ion dominance prevent the absorption of this magnesium by the plant. So there is induced deficiency of magnesium. और हम ये कह सकते हैं कि एसिडिक सॉइल में जब हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है तो ये मैग्नीशियम के साथ कंपटीशन करेगा, उस कारण से मैग्नीशियम प्लांट को अवेलेबल नहीं होगा, रूट्स हाइड्रोजन आयन को एब्जॉर्ब करेंगी, जिस कारण से मैग्नीशियम की इसमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, एंड सच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी. Similar case is in forest ecosystem. In forest soils are acidic, and there is dominance of hydrogen ion, and there is induced deficiency. So this magnesium deficiency is a worldwide spread phenomena. तो ये magnesium deficiency हो जाती है. हालांकि मैग्नीशियम प्रेजेंट है सॉइल में, लेकिन ये दूसरे कैटायंस इसके साथ बहुत कंपटीशन करते हैं, और पर्टिकुलरली एसिडिक सॉइल में हाइड्रोजन की डोमिनेंस होती है और ये मैग्नीशियम प्लांट को अवेलेबल नहीं होता है. तो मैग्नीशियम अवेलेबल है सॉइल में, लेकिन प्लांट को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, एंड दिस सच टाइप ऑफ डेफिशिएंसी इज कॉल्ड इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी. देन फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम इन प्लांट. When magnesium is absorbed, by the plant, then it is absorbed in the form of magnesium ion. Then it makes ionic bond. So most of the bonds are ionic in plant, and some may be covalent bond, but most are ionic bond, covalent bond. तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं आयंस, और कोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं.
तो ये जो मैग्नीशियम बनाता है प्लांट सेल के अंदर, मोस्ट ऑफ द बॉन्ड आर आयनिक बॉन्ड, और लेकिन कुछ बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है। फॉर एग्जांपल इन क्लोरोफिल में जो बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ वो कोवैलेंट बॉन्ड में भी है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कम होते हैं, और आयनिक बॉन्ड ज्यादा होते हैं। देन इट प्रेजेंट्स इन प्लांट सेल, In plant cell, it occurs in different plant part. फर्स्ट इन सेल वॉल में मिडिल लैमेला में रहता है, जैसे कैल्शियम रहता है मिडिल लैमेला में, वैसे ही मैग्नीशियम भी रहता है एज ए मैग्नीशियम पैक्टेट। और हमने देखा था कैल्शियम किस फॉर्म में रहता है, कैल्शियम भी कैल्शियम पैक्टेट में रहता है, लेकिन जो कैल्शियम पैक्टेट होता है उसकी अमाउंट ज्यादा है, मैग्नीशियम पैक्टेट की कम है। मैंने पहले बताया था जब ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है कैल्शियम का वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो उस कारण से जल्दी से कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, वो चौथी ऑर्बिट में है। जबकि मैग्नीशियम के केस में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट में है, तो इतनी ईजिली रिमूव नहीं कर पाता, लूज नहीं कर पाता, कैल्शियम जल्दी कर देता है। तो कैल्शियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, कैल्शियम जल्दी कंपाउंड बना लेता है मैग्नीशियम के कंपेरिजन में। तो जो मैग्नीशियम पैक्टेट भी बनेगा लेकिन इसकी अमाउंट क्या है, कम है, कैल्शियम पैक्टेट की ज़्यादा है, सेल वॉल में रहेगा। दूसरा क्लोरोप्लास्ट में रहेगा मैग्नीशियम, क्लोरोप्लास्ट में जो रहता है मैग्नीशियम वो रहता है क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल इट इज प्रेजेंट एंड अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम मे बी 6 to 25% डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। जो क्लोरोफिल में जो मैग्नीशियम कंटेंट है, टोटल मैग्नीशियम कंटेंट का हाईएस्ट क्लोरोफिल में 6 to 25%। The third is in vacuole. It is combined with anions, particularly with the phosphate. Then it is also present in cytoplasm. Okay, and another form we can say water soluble form. ये वाटर का soluble रहती है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट होती है दैट इज वाटर सॉल्युबल फॉर्म एंड इट रिमेन इन साइटोप्लाज्म में रहता है। जबकि कैल्शियम की अमाउंट साइटोप्लाज्म में बहुत कम होती है, इस कारण से सेल टू सेल कैल्शियम का मूवमेंट नहीं होता है और इस मैग्नीशियम का मूवमेंट रहता है सेल टू सेल में। ये मान ले जाए ये सेल है, इस तरह से कनेक्ट है, तो मैग्नीशियम क्या है, इस साइटोप्लाज्म है, यहाँ से इस सेल से मूव करेगा, मैग्नीशियम यहाँ आएगा, इससे मूव करेगा यहाँ आएगा, इससे मूव करेगा यहाँ आएगा। So that's why magnesium is mobile in plant. So it is mobile in plant. Why calcium is immobile. This calcium is immobile. क्योंकि जो मैक्सिमम कैल्शियम था पैक्टेट में था और साइटोप्लाज्म में कैल्शियम बहुत कम है, और आयन की मोबिलिटी के लिए मींस उसको सेल टू सेल चलना है तो उसको साइटोप्लाज्म में होना चाहिए। तो मैग्नीशियम रहता है जबकि कैल्शियम नहीं रहता है, तो मैग्नीशियम इज मोबाइल and calcium is immobile while both are divalent cation. So this is the reason कि क्यों मैग्नीशियम मोबाइल है और कैल्शियम इमोबाइल है। ये फॉर्म है जिस फॉर्म में मैग्नीशियम रहता है। देन its function in plant cell, magnesium function in plant cell. Number 1 is chlorophyll formation.
chlorophyll formation. A chlorophyll molecule is hydrocarbon chain with 4 atoms of nitrogen and 1 atom of magnesium, and magnesium is central atom. तो इस तरह से मैग्नीशियम सेंट्रल एटम में होता है, बीच में होता है, इसके चारों तरफ नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन एटम होता है, and these nitrogen atoms are bond with the magnesium. So there is a 1 atom of magnesium, and this magnesium is in porphyrin ring. So chlorophyll formation started with insertion of magnesium into porphyrin structure. So there is a insertion of magnesium into porphyrin structure, then chlorophyll formation start, and these nitrogen are associated with the this carbon chain, long carbon chain, and these chain are long carbon chain. They are carbon chain, so there is one central atom magnesium. So whenever there is a deficiency of magnesium, ये magnesium यहाँ से हट जाएगा, जब डिफिशियंसी होगी मैग्नीशियम की, हट के मूव कर जाएगा, और देन नो क्लोरोफिल फॉर्मेशन. तो ऐसे केस में क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा. जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होगा, लीफ कैसी हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी. दिस इज द रीजन दैट अंडर मैग्नीशियम डिफिशियंसी लीफ बिकम येलो. और ये जो प्रोसेस होता है क्लोरोफिल का ना बनना और लीफ का पीला हो जाना, दैट इज कॉल्ड क्लोरोसिस. तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी जब भी होगी वहां क्या होगा, क्लोरोफिल नहीं बनेगा, नो क्लोरोफिल फॉर्मेशन एंड क्लोरोसिस. एंड दिस मैग्नीशियम इज मोबाइल इन प्लांट. तो मैंने बताया कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स कहाँ आएंगे, पहले लोअर लीव्स पर आएंगे. तो जो क्लोरोसिस स्टार्ट होगी फर्स्ट कहां से स्टार्ट होगी, ओल्डर लीव्स से. So since it is involved in chlorophyll formation, that's why its deficiency cause chlorosis. Is it clear? The next function is protein synthesis. Protein synthesis. How it is involved in protein synthesis? It is involved in protein synthesis by aggregation of ribosomes. और हम जानते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है, राइबोसोम पे होता है. और मैग्नीशियम कहाँ इन्वॉल्व है, जो राइबोसोम्स की सब यूनिट है उनका एग्रीगेशन करता है. कैसे करता है, ये ब्रिजिंग कैटायन की तरह काम करता है. चूंकि इसमें 2 वैलेंसी हैं प्लस प्लस, तो इन प्लस वैलेंसी से क्या करता है, राइबोसोम ये सब यूनिट्स को ज्वाइन करता है. तो दिस मैग्नीशियम आयन act as a bridging element for aggregation of ribosome subunits. तो राइबोसोम इसने मैग्नीशियम में क्या किया, जो राइबोसोम्स था उनकी सब यूनिट्स को जोड़ने का काम किया ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह. तो राइबोसोम्स जब बन जाएगा तब क्या होगा, इस पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा. दीज राइबोसोम्स आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. So this is the reason that magnesium deficiency also cause poor protein synthesis. और जो क्लोरोप्लास्ट है, जो लीफ में जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें 25% प्लांट की प्रोटीन्स होती हैं. अबाउट 25% प्रोटीन आर लोकेटेड इन क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट में पूरे सेल की 25% प्रोटीन है. अब अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी होगी तो क्या होगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं बनेगा. तो एक तो उसका स्ट्रक्चर नहीं बनेगा प्रॉपर, उसका प्रॉपर साइज नहीं होगा, और जो प्रोटीन्स बन रही थी, जो एंजाइमेटिक एक्शन करती वो भी नहीं होती, तो फंक्शन भी नहीं होगा. तो साइज अफेक्ट होगा, स्ट्रक्चर अफेक्ट होगा, और फंक्शनिंग भी पुअर हो जाएगी.
तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी क्या करेगी, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, साइज और फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगी। जो दूसरा इंपैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड इन फोटोसिस्टम 2, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। चूंकि क्लोरोप्लास्ट डिस्टर्ब हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन फोटोसिस्टम 2 इज आल्सो अफेक्टेड। सो फोटोसिस्टम 2 is affected because there is no protein synthesis, so no proper functioning of this chloroplast. Okay, so there is a great role of magnesium in functioning of chloroplast. The next role of magnesium is RNA synthesis. RNA synthesis. RNA synthesis कैसे करता है RNA synthesis? ये जो मैग्नीशियम है ये काफी एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, ब्रिजिंग एलिमेंट की तरह काम करता है, उनके साथ एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है सबस्ट्रेट के बीच में और एंजाइम के बीच में, और उससे एंजाइम की फंक्शनिंग को बढ़ाता है। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट मोर देन 300 एंजाइम्स आर इन्फ्लुएंस्ड अफेक्टेड बाय मैग्नीशियम। यहाँ मैग्नीशियम ऐसे को फैक्टर की तरह काम करता है और 300 से ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है प्लांट सेल के अंदर वो मैग्नीशियम से अफेक्ट होती है। तो दिस आरएनए सिंथेसिस इज अफेक्टेड बाय और गवर्न्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज एंड मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एंजाइम एक्टिविटी आरएनए पॉलीमरेज। तो मैग्नीशियम अगर प्रॉपर होगा तो आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी विल बी हाई, देन देयर विल बी आरएनए सिंथेसिस। तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी अगर होती है प्लांट के अंदर तो उसके अंदर आरएनए सिंथेसिस न्यूक्लियस के अंदर बहुत कम हो जाएगा, और हम जानते हैं आरएनए की क्या इंपॉर्टेंस है प्लांट सेल। नेक्स्ट रोल इज स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। मैग्नीशियम act as a bridging element between the two strand of DNA। तो क्या करता है, डीएनए के जो दो स्ट्रैंड है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, जिसके कारण से क्या होता है डीएनए का स्ट्रक्चर क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो अगर ये मैग्नीशियम नहीं होगा तो उन स्ट्रैंड्स के बीच में इंडिविजुअल जो स्ट्रैंड्स है डीएनए के उसमें ब्रिजिंग नहीं होगी और डीएनए का स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। दस इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। सो डीएनए स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी इज आल्सो अफेक्टेड बाय मैग्नीशियम। नेक्स्ट रोल इज एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम एक्टिवेशन एंजाइम एक्टिवेशन, बहुत सारे एंजाइम मैग्नीशियम से अफेक्ट होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, उनकी एक्टिविटी मैग्नीशियम पर डिपेंड रहती है। इसमें मैं आपको कुछ की एंजाइम्स बता रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो है एटीपीएज। एटीपीएज एंजाइम। ATPase enzyme. What is the role of this enzyme? This enzyme is involved in splitting of ATP. तो जो ATP split करता है, ATP split into ADP plus inorganic phosphate, and this process release the energy. And ATPase enzyme is required for this process or this reaction. So ATP की जो splitting है, ये जो energy formation हो रहा है, that is governed by magnesium through ATPase enzyme activity. If there is a magnesium deficiency, then this enzyme will not work and there will be no proper energy release. Secondly, this magnesium attached with the ATP. Actually, magnesium attached with ATP and it make a complex, and this complex is highly इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एटीपीएस एंजाइम। तो जो ये एंजाइम है इस पे ज्यादा तेजी से वर्क करता है रेदर देन एटीपी। तो मैग्नीशियम अगर है तो एटीपी के साथ इस तरह कॉम्प्लेक्स बनाएगा और इसकी स्प्लिटिंग बहुत जल्दी हो जाएगी, एटीपी प्लस पीआई और मैग्नीशियम अलग रिलीज हो जाएगा। दैट्स व्हाई फॉर एनर्जी रिलीज
magnesium is required. So magnesium is required for energy release also. Then another role is phosphorylation of ADP. Phosphorylation of ADP. Actually, ADP combined with inorganic phosphate, and it makes ATP. It makes ATP, and this is the phosphorylation of ADP. Phosphorylation. Phosphorus group attach होगा ADP के साथ, then it will make ATP. And this phosphorylation is affected by or influenced by magnesium. So magnesium increases the phosphorylation of ADP and it makes ATP. तो हमने क्या देखा कि ATP की स्प्लिटिंग हो रही है एनर्जी देने के लिए, उसके लिए भी मैग्नीशियम चाहिए, और ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए भी मैग्नीशियम चाहिए. तो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो कन्वर्जन है ATP में, वो किसकी हेल्प से हो रहा है? मैग्नीशियम की हेल्प से हो रहा है. तो whenever there is a magnesium deficiency, this inorganic phosphate will not convert into ATP, और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐसे रह जाएगा. तो जो फॉस्फेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो मैग्नीशियम की वजह से हो रहा है. तो इसलिए जो है मैग्नीशियम क्या होता है, इस फॉस्फेट का कैरियर होता है. अगर मैग्नीशियम बढ़ रहा है तो फॉस्फेट को भी अपने साथ लेगा उसको मेटाबोलाइज करने के लिए. तो जो ऑयल सीड्स क्रॉप है जिसमें ऑयल सिंथेसिस ज़्यादा है, दे रिक्वायर मोर एनर्जी फॉर ऑयल सिंथेसिस ATP. तो उस केस में मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ATP फॉर्मेशन के लिए इन ऑयल सीड क्रॉप्स. ओके, so this magnesium is required for ATP synthesis as well as splitting of ATP. The next function of magnesium in enzyme activation is RUBP carboxylase. RUBP carboxylase enzyme. ये एंजाइम क्या करता है? CO2 फिक्सेशन करता है. And this enzyme activity is enhanced by magnesium. Magnesium increases the activity of carboxylase enzyme. इस carboxylase enzyme के साथ क्या होगा? इस CO2 का फिक्सेशन क्या होगा? ज्यादा होगा. CO2 फिक्सेशन ज्यादा करेगा, तो CO2 फिक्सेशन ज्यादा होने से कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा बनेगा. तो ये जो RUP कार्बोक्सिलेज के साथ एफिनिटी बढ़ाता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ RUP कार्बोक्सिलेज टू CO2. और अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, मिचेलिस-मेंटेन काइनेटिक्स की बात करें, तो जो एफिनिटी होती है एंजाइम की और सब्सट्रेट की, किस टर्म से करते हैं उसे हम? Km से. मिचेलिस कांस्टेंट Km. तो हम कह सकते हैं कि जो Km वैल्यू है एंजाइम की, कौन बढ़ाता है? मैग्नीशियम. उसी तरह से जब इसकी एफिनिटी बढ़ेगी, इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो CO2 फिक्सेशन ज्यादा होगा. तो पर यूनिट टाइम हमको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ज्यादा CO2 फिक्सेशन होगा. इसको हम कह सकते हैं टर्न ओवर रेट ऑफ CO2 इंक्रीजेस. तो जो ये स्पीड बढ़ेगी इसको क्या बोलते हैं काइनेटिक्स में? V मैक्सिमम, टर्न ओवर रेट ऑफ CO2 फिक्सेशन, V मैक्सिमम. सो बोथ इंक्रीजेस, Km एंड V मैक्सिमम इंक्रीजेस. तो ये RUP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाता है जिससे CO2 फिक्सेशन ज्यादा होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मैग्नीशियम का CO2 फिक्सेशन में. तो हमने देखा कि प्रोटीन सिंथेसिस मैग्नीशियम से हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में कैसे काम कर रहा है? एक तो क्लोरोफिल की मॉलिक्यूल की तरह काम कर रहा है, दूसरा ये RUP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की एक्टिविटी को भी बढ़ा रहा है. जो नेक्स्ट एंजाइम है वो है ग्लूटामिन सिंथेसेस. What is the role of this enzyme? This enzyme is required for conversion of ammonia into amino acid. So ammonia assimilation के लिए इस एंजाइम की जरूरत होती है. हम जानते हैं कि प्लांट जो एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन को किस फॉर्म में करते हैं? नाइट्रेट फॉर्म एंड अमोनियम फॉर्म. एंड दिस नाइट्रेट is converted into nitrite, and this nitrite is converted into ammonium ion. And similarly, these ammonium ions. And these ammonium ions are assimilated into amino acids. And these amino acids is converted into protein. So this glutamine synthase is required here at this stage.
For conversion of ammonium ion to amino acid, glutamine synthase is required, and this enzyme activity is enhanced by magnesium. So in this way, magnesium is also helpful in amino acid synthesis and protein synthesis. तो मैग्नीशियम बहुत जगह काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस को कर रहा है, एमिनो एसिड्स को कर रहा है, एनर्जी रिलीज में कर रहा है. नेक्स्ट एंजाइम इज fructose 1,6-bisphosphate enzyme. Fructose 1,6-bisphosphatase. इस एंजाइम का क्या रोल है सेल में? ये एंजाइम क्या करता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, CO2 फिक्सेशन होता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, पहले ट्रायोस फास्फेट बनते हैं, और ये ट्रायोस फास्फेट क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट से निकल के कहाँ आते हैं, साइटोप्लाज्म में आते हैं. ऐसा समझिए सेल स्ट्रक्चर, ये सेल है, इस सेल है, इस सेल में ये क्लोरोप्लास्ट है और ये साइटोप्लाज्म है. तो जो ट्रायोस फास्फेट बनेंगे, टीपी ट्रायोस फास्फेट, वो कहाँ आते हैं, बाहर आएंगे साइटोप्लाज्म में, और उसमें जो एसिमिलेशन पार्टीशनिंग होगी उसमें ये फ्रक्टोज 1,6-फॉस्फेटेज एंजाइम इन्वॉल्व रहता है. अगर ये ट्रायोस फास्फेट बाहर नहीं आते हैं तो क्या होगा, जो हमारे ट्रायोस फास्फेट अंदर है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, स्टार्च में. अगर magnesium deficiency is there, then this enzyme will not act properly. Then triphosphate will convert into starch inside the chloroplast. और ये कहाँ, फिर लीफ के अंदर ये स्टार्च की सिंथेसिस होती रहेगी. तो लीफ में तो जो कार्बोहाइड्रेट है एसिमिलेशन होगा, लेकिन जो दूसरे प्लांट पार्ट है जहाँ इसको ट्रांसपोर्ट होना था, शूट में हो सकता है या रूट में, वहाँ कार्बोहाइड्रेट का एसिमिलेशन नहीं होगा. तो इस कारण से अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी होती है तो लीफ में स्टार्च का वेट तो बढ़ता है लेकिन रूट का वेट नहीं बढ़ता. तो अगर हमारा सीड हो रहा है, ग्रेन डेवलप कर रहा है, तो उस समय उसमें प्रॉपर पार्टीशनिंग एक्युमुलेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होगा, तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो जाएगी. तो एसिमुलेट, पार्टीशनिंग, ट्रांसलोकेशन में भी इसका मैग्नीशियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. सो दीज वर सम एंजाइम्स. देन नेक्स्ट फंक्शन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और सिंथेसिस. कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग. कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग का मतलब यह है कि लीफ में जो कार्बोहाइड्रेट बने हैं उनको उस जगह जाना है जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. जैसे रूट है, रूट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो रूट की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो उन फोटोसिंथेटिक्स पे डिपेंड रहती है जो लीफ उसको सप्लाई करती है. तो रूट ग्रोथ अल्टीमेटली किस पे डिपेंड है, लीफ पे डिपेंड है. इसी तरह से जो ग्रेन है वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. ग्रेन में जो कार्बोहाइड्रेट्स आएंगे वो लीफ उसको सप्लाई करेगी. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग है इसको हम सोर्स बोलेंगे, लीफ को क्या बोलेंगे हम, सोर्स. और जहाँ कार्बोहाइड्रेट को इकट्ठा होना उसको हम क्या बोलेंगे, सिंक. तो जो सोर्स टू सिंक जो पार्टीशनिंग है वो अफेक्ट होती है मैग्नीशियम डिफिशियंसी से, क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है, कई एंजाइम्स को अफेक्ट करता है, तो वो एंजाइम प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. तो अभी मैंने पहला एग्जांपल क्या बताया, फ्रक्टोज 1,6-बिस्फॉस्फेटेज एंजाइम की एक्टिविटी पुअर होगी. उस एंजाइम की एक्टिविटी पुअर होने से क्या होगा, स्टार्च लीफ में एक्युमुलेट करता रहेगा. तो लीफ का तो ड्राई वेट बढ़ेगा. सपोज लीफ है, इस लीफ के अंदर तो स्टार्च सिंथेसिस होगी लेकिन ये बाहर नहीं जा पाएगा. तो यह क्या होगा कि लीफ का ड्राई वेट बढ़ता रहेगा और जो रूट का ड्राई वेट है वो क्या होगा, कम होगा. तो पार्टीशनिंग प्रॉपर नहीं होगी. नेक्स्ट इफेक्ट क्या होता है, ये जो सुक्रोज जो बनते हैं लीफ के अंदर उनकी फ्लोएम लोडिंग होती है, फ्लोएम लोडिंग होती है और ये ट्रांसलोकेट हो जाते हैं रूट को, शूट को या ग्रेन को. तो इस फ्लोएम लोडिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए. क्या चाहिए, एनर्जी. ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, एटीपी. और एटीपी किससे बनता है, एटीपीएस से. और एटीपीएस किस पे डिपेंड है, मैग्नीशियम से. अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी हो रही है तो अंडर मैग्नीशियम डिफिशियंसी ATPase नॉट विल वर्क, देयर विल नो एनर्जी फॉर्मेशन
and there is no phloem loading and sucrose will remain into leaf. ऐसे केस में लीफ का तो ड्राई वेट बढ़ता रहेगा मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में, लेकिन रूट का ड्राई वेट नहीं बढ़ेगा। तो हम अगर शूट का ड्राई वेट देखें, ओवरऑल शूट का, वो तो बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ड्राई वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट ऑफ लीव्स, लेकिन रूट का क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो अगर हम इसका शूट रूट रेशियो निकालें, शूट रूट रेशियो, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा या घटेगा? ये तो बढ़ रहा है, यहाँ पे तो फोटोसिंथेसिस है, कार्बोहाइड्रेट आ गए, लेकिन यहाँ रूट में नहीं है, तो रूट का ड्राई वेट घट रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो इन टर्न रेशियो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दिस इज द रीजन दैट अंडर मैग्नीशियम डिफिशियंसी शूट रूट रेशियो इंक्रीजेस। तो ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग में उसका रोल है बाय टू मीन्स। हाउ? नंबर 1 बाय इन्फ्लुएंसिंग द fructose 1,6 bisphosphate enzyme activity. Number 2 by reducing the activity of ATPase which provide the energy for phloem loading. तो ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम का प्रोटीन सिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में, कार्बोहाइड्रेट पार्टीशनिंग में, सीड डेवलपमेंट में, रूट डेवलपमेंट में। तो अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है तो सीड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, छोटे छोटे सीड रहेंगे। इसी तरह से पोटैटो का अगर हम एग्जाम्पल ले, जहाँ हमारा सिंक ट्यूबर है और मैग्नीशियम डिफिशियंसी है, तो क्या होगा, लीफ में तो फोटोसिंथेट्स हैं, लेकिन वो ट्रांसलोकेट नहीं होंगे ट्यूबर के अंदर, क्योंकि हमको एटीपीएस की एक्टिविटी प्रॉपर नहीं मिल रही, तो एटीपी फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो सुक्रोज की जो लोडिंग है, कार्बोहाइड्रेट की जो लोडिंग है फ्लोएम में, वो नहीं हो पा रही है। तो इस कारण से मैग्नीशियम डिफिशियंसी में ओवरऑल जो क्रॉप ग्रोथ है वो हट जाती है। हमने ये देखा कि कैसे मैग्नीशियम वर्क कर रहा है प्लांट के अंदर। Number 1 by chlorophyll formation, so it is important for photosynthesis. Then protein synthesis in many ways, protein synthesis कई तरीके से कर रहा है, RNA polymerase से कर रहा है, और ग्लूटामिन सिंथेसेस से कर रहा है, राइबोसोम के एग्रीगेशन से कर रहा है। तो ये कई तरीके हैं। एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि जो मैग्नीशियम की जो स्प्लिटिंग हो रही है एटीपीएस एंजाइम से होती है, तो एटीपीएस एंजाइम को चाहिए। दूसरा, एटीपी एज सच वर्क नहीं करता है, याद रखें इसको, एटीपी का इतना प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती है जितनी प्रॉपर होती है मैग्नीशियम एटीपी। तो मैग्नीशियम एटीपी इज प्रॉपर सबस्ट्रेट फॉर द एक्टिविटी। ओके, तो मैग्नीशियम जितना अच्छा होगा प्लांट के अंदर, एटीपी उतना अच्छा वर्क करेगा। तो एंजाइम एक्टिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसको कैसे एंजाइम में करता है, इसको मैं एक बार फिर देता हूँ। जो एंजाइम में होता है, ये माना हमारा रिएक्टेंट है या सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, ये क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। यहां क्या करता है मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो जाता है एंजाइम के साथ, और कभी कभी ये जो मैग्नीशियम है सबस्ट्रेट के साथ भी अटैच हो जाता है, तो एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनाता है, तो एक प्रिसाइज ज्योमेट्री बनाता है बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड एंजाइम। तो जो एंजाइम की जो एफिनिटी है, एंजाइम की एफिनिटी वो बढ़ जाती है। तो उस कारण से क्या होता है, एंजाइम प्रॉपर वर्क करते हैं। तो जो एंजाइम में अधिकतर वो इस तरह से मैग्नीशियम से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो टर्नरी कॉम्प्लेक्स बनता है, टर्नरी कॉम्प्लेक्स, ए प्रिसाइज ज्योमेट्री, इट डेवलप ए प्रिसाइज ज्योमेट्री बिटवीन सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, तो उससे एंजाइम की फंक्शन बढ़ती है। जो नेक्स्ट रोल है मैग्नीशियम का, वो है कैटायन एनायन बैलेंस, कैटायन एनायन बैलेंस, कैटायन एनायन बैलेंस। तो जो मैग्नीशियम है दैट इज कैटायन, और जो एनायंस हैं इनके साथ काउंटर आयन की तरह काम करता है, खासतौर से फॉस्फेट के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ। तो उससे क्या होगा, पीएच, सेलुलर पीएच मेंटेन रहती है। तो जो फिजियोलॉजिकल पीएच है मेंटेन है 7 to 8 के बीच में। तो ये मैग्नीशियम क्या करता है, it maintains the cellular pH and most of the enzyme work at this pH. So this is the reason that why magnesium influence the enzyme activity. So अब हमने सीख लिया, दो रीजन हो गए। एक तो क्या हुआ, it develop a precise geometry between the substrate and enzyme. Number 2, it maintains the cellular pH by cation anion balance. तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होगी तो जो पीएच होगी वो एसिडिक साइड में जाएगी और फिर एंजाइम काम करना बंद कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, अगर ये वैक्यूल में रहता है तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन इन वैक्यूल, बिकॉज इट प्रेजेंट इन वैक्यूल, सो इट हेल्प इन
ऑस्मो रेगुलेशन। और फिर जो टर्गर रिलेटेड प्रोसेस है, टर्गर रिलेटेड प्रोसेस आर अफेक्टेड बाय दिस मैग्नीशियम। तो ऑस्मो रेगुलेशन में, टर्गर प्रेशर में, कैटायन आयन बैलेंस में, सेलुलर पीएच में ये हेल्पफुल है। तो अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है तो प्लांट का एक प्रोसेस नहीं, सो मैनी प्रोसेसेस आर अफेक्टेड। तो अभी हमने ये देखा कि कैसे मैग्नीशियम इसको अफेक्ट करता है। और मैग्नीशियम और कैल्शियम का अगर हम केमिकल नेचर देखें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन प्लांट के अंदर अधिकतर हमें कैल्शियम के कंपाउंड्स मिलते हैं। सॉइल में भी अधिकतर हमें कैल्शियम के ही मिलते हैं, मैग्नीशियम कम मिलते हैं, क्योंकि जो रिएक्टिविटी है कैल्शियम की ज़्यादा है। वो क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है। तो इलेक्ट्रॉन, और हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन किससे होते हैं? इलेक्ट्रॉन से होते हैं। तो जो आउटर पे है, दूर है, तो जल्दी लूज कर देगा कैल्शियम और कंपाउंड्स बना लेगा। मैग्नीशियम में क्या है? तीसरी ऑर्बिट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो उसको इतनी जल्दी लूज नहीं कर पाता जितना जल्दी कैल्शियम कर देता है। तो ये कई सारे रीजंस हैं, और जब हम इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिस्कस करेंगे मैग्नीशियम की, तो उसके पीछे इनका रोल होगा। सो डेफिशिएंसी सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ देयर रोल। तो अगर वो रोल प्ले नहीं हो रहा है तो वो डेफिशिएंसी आती है। वन मोर थिंग जो लेफ्ट, एक चीज छूट गई है कि जब लीफ में मैग्नीशियम डिफिशियंसी है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, देन इन लीफ in chloroplast starch synthesis will take place. Starch synthesis, there will be more starch synthesis, and there is no export of trisose phosphate into cytoplasm and other part. तो ये स्टार्च एक्यूमुलेट किस में करेगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर दिस स्टार्च विल एक्यूमुलेट। देन RUBP कार्बोक्सिलेज का जो रिएक्शन है CO2 के साथ, अब वो नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ फीडबैक रेगुलेशन नाउ इट इज सेल्फ क्लोरोप्लास्ट इज सेटिस्फाइड विद द स्टार्च सिंथेसिस, सो नो मोर CO2 will combine with RUP carboxylase. So CO2 will not combine with this carboxylase. तो उस समय क्या होगा? ये जो RUP कार्बोक्सिलेज की जो एक्टिविटी है दैट इज शिफ्ट टू ऑक्सीजनेज, एंड ये हम जानते हैं कि RUP वर्क बोथ एज ए कार्बोक्सिलेज, CO2 के साथ भी एफिनिटी रखता है और ऑक्सीजन के साथ भी एफिनिटी रखता है, लेकिन प्रायोरिटी किसके साथ है इसकी? CO2 के साथ होगी। एंड दिस इज टाइम इट विल कंबाइन विद ऑक्सीजन, देन ऑक्सीजन एक्टिवेशन अकर एंड फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट। तो मैग्नीशियम डिफिशियंसी में क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा। एंड व्हेन देयर इज अ फोटो रेस्पिरेशन, देन जो रेडिकल्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सुपर ऑक्साइड रेडिकल हो, चाहे वो हाइड्रोजन परऑक्साइड हो, और उसी के इंटर्न में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट ही होंगे। तो इफ देयर इज अ मैग्नीशियम डिफिशियंसी, सो इन द मैग्नीशियम डिफिशियंसी दिस ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन इज देयर, सो लीव्स बिकम हाईली सेंसिटिव टू सनलाइट। तो अगर मैग्नीशियम डिफिशियंसी है और सनलाइट हाई है तो क्या होगा? उसमें क्लोरोसिस स्टार्ट हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगा। यही रीजन होता है कि अगर मैग्नीशियम डिफिशिएंट प्लांट को बहुत ज़्यादा सनलाइट दिया जाए तो उसमें क्लोरोसिस और नेक्रोसिस होता है, बिकॉज देयर इज एक्टिवेशन ऑफ O2 एंड फोटो रेस्पिरेशन। So this was about the magnesium function in plant. Thank you very much.